Uh, we will be discussing about, first of all, about the lockdown situation, and we will be specifically discussing about the mental health issues or mental health um, of students and how they can improve it during this lockdown. So now what does mental health basically mean? Mental health basically means the level of your mental activity, and if you are able to if you are being able to manage that mental activity, that basically leads to a mental health issues. So that is what we will be discussing, and at the very end, you will be allowed to ask questions that you may have. Apart from that, I hope that you will watch this entire conference. You will be part of this entire conference, and do ask questions in the end because that will help everybody else. Because बाकी लोगों को भी questions हो सकते हैं, तो आप अगर पूछेंगे तो दूसरे लोगों को भी हिम्मत होगा कि नहीं हम भी पूछे। तो अगर आपको क्वेश्चन है तो तुरंत पूछिए, एंड में पूछिएगा तुरंत, मतलब हाँ पूछिए उसको, सो दैट दूसरे लोग भी आपको देखेंगे ठीक है नहीं ये पूछ रहा है क्वेश्चन तो मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, सो दैट विल हेल्प एवरीबडी. So let's see how this goes. Okay, okay. Ritvik has joined. So, hello, Ritvik. Can you hear me? I can hear you. Can you see me? Am I Um, audible? you're audible, but I'm not yet able to see you. Ah, yes, you're not visible. Yeah. Just hold on a second. Yeah, Ritvik. So I have my students here. They are all in the Okay. BCom undergraduates. Some are from the first semester, some are from the third semester, and a few are from the sixth semester as well. So you can understand Okay. the age group. So right now, due to the lockdown, everybody is home, and nobody has previously faced this kind of a situation where they are home for this long and not able to go out or Yeah. go out and meet their friends, etc. So what I wanted Right. you to discuss today, I think I have given you a brief earlier, that how they can cope Right. up with this situation and what are the stress issues that might have, that they might be facing, and how can they remedy this situation, or what will help them to remedy the situation, and Yeah. anything related to these things that you may want to discuss. At the very end we will be taking a few questions as well. So Oh, sure. that is basically going to be the conference that we are having today. I what From what Right. I feel, you can take over from here, and you can go ahead with whatever you have to say. I'll just quickly make you the host, so I feel that will help in the video situation for the moment. Okay. Sure. Okay, so I Okay. have made you the host, and I feel that might help a little bit. Let's Okay, see. so you Right. can start, with your whatever you have to say. Okay. So, good afternoon, everyone. My name is Ritvik. I hope I'm audible to everyone and everyone can hear me. So, the thing is that at this point of time in the world, we are currently going through a phase which has not been seen before. 100 years ago, or probably 102 years ago exactly, there was something called the Spanish flu that had taken place all over the world. Actually, hadn't affected us maybe so much, but it had affected the entire world. And just 100 years, 102 years after that, now we are seeing COVID-19 that has actually hit all of us drastically, because of which we have witnessed a lot of change in our lives. Because there is a lockdown, everyone is technically sitting at home all over the country, all over the world for that matter. Uh, but the thing is that what's happening is that as we read newspapers every day, as we watch the news every day, or as we
as we see our mobile phones every day, various devices, various apps, हम लोग जब देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यार, how many cases are going up every day, you know, cases तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, और deaths are happening, there are new cases every day, some people are recovering also, thank god for that. But why are technically people falling and getting ill into coronavirus now? जूम है ना अभी तुम्हारे? देखो, अभी okay, so the thing that happens is that this has hit all of us in such a way and has obviously created a lot of stress, a lot of panic. हम सब के अंदर stress और panic है, and especially आप लोग हैं जो students हैं, especially तो students के लिए तो obviously it must be a thing कि आपका education चल रहा है, आपकी डिग्रियां चल रही है, और उसके साथ साथ ये सब हो रहा है. So इन दिस आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लोगों को स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोगों को वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि द थिंग दैट हैपेंस इज ये जो फेज है, ये फेज का एंड आने वाला है. अब पता नहीं कब, बट इट इज गोइंग टू एंड. पर जब तक ये फेज है तब तक हम लोग सब घर में ही हैं, हम लोग घर से सब काम कर रहे हैं, हम घर से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि अभी देख सकते हो कि ये जो वीडियो चल रहा है, दिस इज अ वीडियो कि हम घर में बैठ के ही कर रहे हैं, या फिर हम जहाँ पे भी हम बैठ के कर रहे हैं, हम मिल नहीं सकते, वही है. सो अभी इस फेज में there is this one thing that I actually came up with, or I formulated this कि in this phase जो stress होते जा रहा है लोगों को, and people are getting worried, people are getting upset because of all these things happening, there is something called the Apple formula. अभी आपको चाहिए तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो. This is called the Apple formula, in which APPLE stand for various things. अभी Apple के अंदर A is basically acknowledge meaning कि अभी ये जो चल रहा है, we have to accept it that we are technically in a lockdown situation, and we have to also accept that this lockdown does not last forever. And also carrying that forward, हमको ये भी एक्सेप्ट करना है कि जब तक ये फेस खत्म नहीं होता तब तक हमको कुछ ना कुछ अपने साथ ऑक्यूपाई करके रखना है. We should not go out of the house. Obviously, all those things are there, but we should acknowledge the fact कि this is a phase and we are going to be okay. Alright, अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को डाउट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हजारों लोग के केस हो रहे हैं. We all are thinking that we all think कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए. We all think like that, right? So we need to just acknowledge the fact कि ये है और हम ठीक रहने वाले हैं, and this is going to be okay. So that is what A stands for in Apple. The next alphabet is P. That is, P is pause. Now when you have acknowledged, you need to pause in your mind, क्योंकि ये जो मेंटल स्ट्रेस का जो है ना, मेंटल स्ट्रेस का ये माइंड से शुरू होता है. तो जब हम लोग जब माइंड में पॉज करते हैं और ये सोचते हैं कि ओके, दिस इज हैपनिंग, सो लेट्स पॉज आवर थॉट्स फॉर अ मोमेंट, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं एक ही टाइम पे. दैट टाइम वी थिंक कि that whatever we are thinking is going to come true. So you're supposed to pause for a minute, take a deep breath and relax. It's all going to be fine. Okay, that's the next thing, that's called pause. And the next thing is to pull back. कि जब कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज पुल बैक कीजिए उससे. प्लीज डोंट गेट इनटू योर थॉट्स. प्लीज उस चीज से आप पुल बैक कीजिए. ठीक है, मीनिंग कि वो जो थॉट्स आ रहे हैं उससे प्लीज विड्रॉ कीजिए. एंड देन वी हैव टू लेट गो, कि आपके मन में जो भी थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हो, तो उन चीजों को आप प्लीज रिलीज कर दो. मतलब आप ज्यादा मत सोचो उन चीजों के बारे में, क्योंकि ये सब चीजें सोचने के बारे में ही हमारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू एक्सप्लोर मीनिंग व्हाट, कि अभी हम लोग घर में बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए जो हमने कभी ट्राई किया ही नहीं होगा. जैसे बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स आए होंगे, या फिर बहुत सारे बहुत सारी चीजें होंगे जो हमने कभी ट्राई किया नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन साइलेंस एंड जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू. ये सब चीजें हमने ट्राई किया नहीं होगा. सो रिमेंबर, अक्नॉलेज, पॉज, पुल बैक, लेट गो एंड एक्सप्लोर. ये चीजें अगर आप करो तो आई थिंक वी विल बी एबल टू बी मच मोर स्टेबल
एंड द थिंग इज लाइक हम लोग अपनी फिजिकल बीइंग के लिए बहुत कुछ करते हैं और मेंटल बीइंग के लिए बहुत कम करते हैं. फिजिकल बीइंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हम लोग दिन में 3 मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर. एक बार नहाते हैं, 2 बार ब्रश करते हैं और बाकी सब बहुत चीजें करते हैं. जिम जाते हैं, बाहर रनिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. तो ये सब हमारे शरीर के लिए है. बट व्हाट अबाउट फॉर आवर माइंड? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि हम सब लाइफ इज ऑल अबाउट गेटिंग अप, गोइंग टू वर्क, कमिंग बैक होम. और लाइफ इज अबाउट गेटिंग अप, कॉलेज जाना है, असाइनमेंट करना है, एग्जाम देना है, डिग्री लाना है, बस खत्म. उसके बाद जॉब लगना है. ये चलता रहेगा, ये तो वैसे ही चलता रहेगा. बट कभी ये सोचा है कि अगर ये सब ना हो तो हम लोग घर बैठे बैठे क्या करेंगे? वैसा सोचो. सो द थिंग इज व्हेन यू थिंक लाइक दैट, देन यू रियलाइज दैट नाउ आई नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई नेवर थॉट कुड हैपन. फॉर एग्जाम्पल कि जब आप सबसे पहले जब सुबह को उठते हो तो आप क्या करते हो? सीधा फोन देखते हो? वो करना बंद करो. सबसे जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले चीज, डोंट लुक एट योर फोन. डोंट लुक एट हु हैज मैसेज्ड यू गुड मॉर्निंग. डोंट लुक एट हु हैज मैसेज्ड यू गुड नाइट द लास्ट नाइट. ये मत देखो किसने क्या फॉरवर्ड किया है, किसने क्या जोक्स भेजे, किसने क्या न्यूज भेजा होगा. वो सब मत देखो. इनफैक्ट वेक अप और अपने साथ ही एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने साथ बैठो. और देखो, मंत्र वंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबके साथ नहीं होता. जस्ट बी इन साइलेंस फॉर सम टाइम एंड बी इन साइलेंस एंड जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ. मतलब 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांस के ऊपर फोकस करो. कुछ बड़ी बात नहीं है. शायद 10 मिनट के बाद आपको कुछ एहसास भी होएगा नहीं, बट ये 10 मिनट आप उठे, आप फोन से दूर रहे, आप सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड उसके बाद यू कैन स्विच ऑन योर फोन इफ यू वांट, यू कैन स्विच ऑन योर डेटा. जिसका मैसेज आया है देखो, जिसको फोन करना है करो. बट एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट से याद रखो, दैट यू डोंट नीड टू कीप लुकिंग कि अरे कोरोना वायरस क्या चल रहा है, कितने लोगों का क्या हो रहा है. डोंट डू ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स अफेक्ट आवर थॉट्स. जितना ज्यादा तुम किसी चीज के बारे में सोचो, वो चीज तुम्हारे मन में मैनिफेस्ट हो जाती है. मैनिफेस्ट मतलब कि तुम उस चीज को बार बार सोचना शुरू करते हो. तो वो सब सोचना बंद करो एंड जस्ट थिंक अबाउट थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ. कि अभी ये लॉकडाउन खत्म होएगा, उसके बाद हमको क्या करना है वो सोचो. ये मत सोचो कि अभी लॉकडाउन है तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है. आप ये सोचो कि आगे जाके हमको क्या करना है. ये डिग्री हमारे हाथ में पाके हम लोग क्या करेंगे इसके बाद. या फिर डिग्री को छोड़ो, हम ये डिग्री के साथ साथ और क्या कर रहे हैं. क्या हमारे कुछ इंटरेस्ट है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ म्यूजिक सुनना, या फिर कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या फिर इंटरनेट पे जाके कुछ नया सीखना. दीज थिंग्स विल हेल्प यू कीप ऑक्यूपाइड. जब आप किसी दूसरे चीज में ऑक्यूपाइड रहेंगे, तब आपका जो माइंड है, दैट टाइम यू विल नॉट थिंक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें होने वाली है. हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट एक चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी थिंक. आप लोग जब ब्रेकफास्ट में खाते हो खाना, लंच में खाते हो, डिनर में खाते हो, तब आप देखते हो ना कि क्या खा रहे हैं. उतना तो देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमको दाल चावल नहीं चाहिए, हमको आज रोटी चाहिए, या फिर रोटी नहीं चाहिए दाल चावल चाहिए. तो आप उसमें डिसीजन लेते हो. बट हम अभी जब फोन में अगर हम ये सब देखना शुरू करेंगे, तो हम उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे. सो यू शुड जस्ट फोकस ऑन थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द थिंग्स दैट विल गिव यू स्ट्रेस. कुछ चीज अगर स्ट्रेस दे रही है तो उसके बारे में मत सोचो. जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू डू. बस अपनी आंखें बंद करो, सोचो कि अभी 10 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे. ये लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है. एंड अगर कुछ म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सुनो. मेडिटेशन अगर आपको आता है तो आप मेडिटेशन करो. बस साइलेंस में बैठ के आंखें बंद करके कुछ नहीं करना है. मंत्र वंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर नहीं होता तो, बट जस्ट सिट इन साइलेंस. बिकॉज द थिंग इज, ये जो अभी का जो समय है घर बैठने का, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रेस्ड, वी शुड थिंक अबाउट हाउ कैन वी यूज इट कंस्ट्रक्टिवली. अगर आपको डायरी लिखने की आदत है, या फिर आपको अगर ऐसे जो पेपर वगैरह होते हैं, ये जो पोस्टिट्स होते हैं, पोस्टिट्स जो हम लोग इसमें नोट्स बनाते हैं, तो पोस्टिट्स में हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं. मतलब कि आज हम लोग को क्या करना है, फिर आज हम लोग क्या करना है हम लेके ऐसे दीवार पे चिपका देते हैं. तो वैसा करो. द थिंग इज, जब आप अपना स्केड्यूल बनाते हो कि 10 बजे को ये करना है, 12 बजे को ये करना है, 1 बजे को ये करना है, 2 बजे आराम करेंगे, उसके बाद 4 बजे हम लोग किसी को फोन करेंगे. द थिंग इज कि हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं एक दूसरे को मिलने का, बाहर जाके बाहर जाके एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में बैठने का, अभी वो सब नहीं हो पा रहा. तो वीडियो कॉल्स करो, एक दूसरे को कॉल करके पूछो कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो.
और कोरोना वायरस के बारे में बिल्कुल डिस्कस मत करो, किसी और चीज के बारे में डिस्कस करो। एक दूसरे को पूछो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एटलीस्ट आस्क अबाउट द वेल बीइंग टू ईच अदर। जब एक दूसरे की अगर हालात पूछोगे तब एक फिर अच्छा लगता है कि अरे हाँ, आई हैव अ फ्रेंड हु केयर्स। सो थिंग इज, डोंट फोकस on what we don't need to focus. Focus on what is very important with us. So that is what I have to say today. If there are any questions that you people have, or if Devanjan you would like to say something, so please. Yeah, surely. Surely. You need to stop convincing. You know the best people जो सबसे वर्ल्ड में जो किसी चीज में बेस्ट होते हैं, वो जाके बोलते नहीं है कि आपको पता है मैं कौन हूँ, आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो ये जॉब मेरा ही होना चाहिए। वो मुंह खोले बिना उनको काम मिल जाता है। अभी आपको पता है ना, डू यू थिंक शाहरुख खान goes and tells that look I'm the best so give me work? No, because he is Shahrukh Khan he gets the best work, or you know because she is Aishwarya Rai she gets the best work. So unless you don't become that person कि आपको देखने से लगता है कि अरे हाँ हमको पता है ये कौन है, जब तक वो टाइम आपके लाइफ में नहीं आता तब तक आप कन्विंस करते रहोगे और आपसे and you will keep finding difficulties. So don't try to convince anyone. Just focus on your talent and keep trying to become better every day till the time you're not the best. And it takes a lifetime to be the best. Trust me. One the day you become the best, आपको देख के ही लोग आपको बोलेंगे कि अरे हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हमको पता आप कौन हो। जब तक वो दिन नहीं आता, तब तक don't even try to convince anyone. Just focus on what you have to do. Your purpose of life, your talent. क्योंकि हमको अपने टैलेंट में ना बिना पैसे मिले हमको बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज इट इज आवर टैलेंट। हम लोग नींद से उठ के भी कर लेंगे वो, बिकॉज इट इज आवर टैलेंट। खुशी मिलती है, राइट? सो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। द डे व्हाट मेक्स यू हैप्पी कन्विंसेस द वर्ल्ड दैट यू आर द बेस्ट एट इट, दैट्स द डे यू हैव won. That's what I want to say. Okay, so I'll just summarize. Actually, my parents is also just are one not. second. I'll just please. convert this in summary in Hindi because हिंदी के भी students हैं यहाँ पे काफी। तो ऋत्विक ने जो बोला उसका मतलब बेसिक छोटा समरी ये होगा कि आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं इस चीज में अच्छा हूँ या मैं इस चीज को कर सकता हूँ। अगर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो उनको मनाने की जरूरत नहीं है। अपना टैलेंट को प्रैक्टिस करते रहिए, अपना काम करते रहिए, चुपचाप करते रहिए। जो भी पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं, उसको चुपचाप सुनते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड अपना काम या अपना टैलेंट को परस्यू करते रहिए, अपने आप को बेटर बनाते रहिए। और धीरे धीरे आपका एक ऐसा टाइम, एक समय आ जाएगा जब आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ब खुद जहां भी जाएंगे लोगों को पता होगा कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप किस चीज में बेहतर हैं। तो इस कारण से कन्विंस किसी को मत करिए। पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे हैं तो आप सिर्फ चुपचाप रहिए, बात उनका मानिए जहां तक मान सकते हैं, और अपना जो टैलेंट है उसको परस्यू करते रहिए, उसको ठीक करते रहिए, उसको बेहतर बनाते रहिए। ठीक है? ओके, गो अहेड विद द क्वेश्चन, साक्षी। Yeah, please. Yes, sir. Actually, my parents are also not that supportive. Keep your mic away. Okay. Yeah, you can say, yeah, please. So yes, sir. तो वो लोग मेरे को बाहर नहीं भेजना चाहते, एंड यूपीएससी के लिए मैं ट्राई करना चाहती हूँ, तो उससे वो लोग सपोर्टिव नहीं है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट इटसेल्फ एट माय होम, so that I can prove it, and I hope that I could do. Okay, so see, this question I will take, Ritvik, if that is okay with you. Sure, please, go ahead. Yeah. So Sakshi, see, this question is quite important to everybody if they are willing to pursue something and they want to go out for it, but the parents are not allowing it. What you have to do is, first of all, you have to start that preparation by yourself, and you have to find people who are also doing that preparation, and you have to start taking certain tests, and then you can show the results of these tests to your family members that see, this preparation I have done on my own, and just by studying on my own I have gotten this much amount of marks. So now just imagine if I study additionally and take some, go outside and take some extra help, मैं बाहर जाकर अगर पढूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग सोच लीजिए।
So this is the approach that you should take. First start, आप खुद से शुरुआत करिए, खुद से थोड़ा अपना लेवल बना लीजिए, उसके बाद आप उनको दिखा सकते हैं कि अच्छा देखो मैं खुद से पढ़ के मैं इतना लेवल पे पहुंच गई हूँ, मैं आगे अगर बाहर जाके दूसरे का हेल्प लेकर पढ़ूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ. So I think this should be the approach here. Yeah. Okay. Like I said, if you have a talent, just focus on your talent. If you think that doing UPSC or whatever it is, going out is your talent, just focus on your talent till the time you don't have to convince anyone. Like he said, just do papers, become good at it, make mistakes, but become good at it, keep improving. The day you are perfect at it, people will observe your hard work. ये मत सोचना कि कोई देख रहा नहीं है, लोग देखते हैं, फैमिली भी देखती है, कुछ बोलते नहीं है, देखते हैं पर. Exactly, they And the observe day they know it. everything. They know everything. Correct. They just don't say it. Okay, so the And we last think- question, yeah. last question, Ritvik, Yeah, I'll please. just quickly ask is, see, nowadays आजकल सबके पास फोन है. मैं ये पूरा हिंदी में ही करूंगा, ये last वाला जो चीज है. हाँ, ठीक है. Just a second. Okay, so सबके पास फोन है, सबके पास फोन्स में गेम्स हैं. तो अभी क्योंकि बहुत ज्यादा फ्री टाइम है तो लोग वो गेमिंग के तरफ बहुत ज्यादा चले जाते हैं, ठीक है. और यहाँ पे एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. इवन पबजी वगैरह, इवन आई हैव प्लेड इट, मैंने भी खुद पबजी खेला है. बहुत एडिक्टिव गेम है एंड आपको हरदम वो लगने लगता है कि यार खेलूं, मैं खेलूं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि दोस्त मिल जाते हैं और वो खेलने में मजा आता है. तो quickly, just I would, we don't have a lot of time left, so I would just ask you to answer this in 1 minute, that how should somebody remove it from their schedule, or how should they avoid it? Okay. Keep it very brief, just 1 minute. Yeah. We all want to become successful in life, right? We all want to be something in life. We all want to have a lot of money and a successful career in our life. If we want to do that, we have to remove all the things that look easy to us, that look enjoyable to us, and that feel very good to us. That could be gaming, that could be sleeping late at night, that could be having a very lavish lifestyle and working less, and thinking that everything's going to be fine. Do things that you need to do towards your future. Gaming, PUBG, gaming, all these games that we have on our phones, these things are things which you can do for time pass, but don't make your life all about that time pass. Make your life something about concreteness, something that you want to do for the future. If you want to get into UPSC, if you want to become an engineer, if you want to become whatever you want to become an author, you want to become an actor, or you want to become, let's say, a teacher. So focus your energies towards that. Game is just when you want to feel a little relaxed. And वो भी आपको relax करवाता नहीं है, वो आपको और भी tension देता है. And so because you keep thinking of the game, अरे मेरे को खेलना है, मेरे को खेलना है, तो ये सब सोचते रहोगे, तो फिर आपका जो focus है वो और भी बढ़ जाएगा. असली चीज में focus नहीं. Okay, so that will be all. That will be. I do not want to stretch this topic too much. This was a side topic that I just quickly asked. No problem. Okay, so that will be all, Ritvik. Thank you very much, Ritvik, for interacting with us and giving us this time from your busy schedule. I hope that the questions that we posed to you were important. And thank you very much. We'll be ending the meeting today. Thank you again, Ritvik. Thank you, for sir. coming. And thank you so much. Thank you for having me. Okay, thank you very much. Bye bye, everyone. All the best. Thank you. Yeah, Thank you, same to sir. you, Ritvik. Thank you.